Dear kids, today in our online study class in English we will read chapter 2.1. Okay, the name of the chapter is The Cat Family of India. But in this video I am explaining this chapter in a new way, so I will not show you the book on the screen. So you should open your book and put it in front of you, then watch the video for better understanding. Okay, so let's start our chapter. Students, open your book at page number 36 and we will start with the chapter 2.1, The Cat Family of India. India is the only country in the world that has all the three main species of cats. Okay, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि कैट की जो थ्री मेन स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं. एंड दीज थ्री मेन स्पीसीज़ आर, फर्स्ट इज़ द टाइगर, second the lion, and third the leopard. Okay, it also has all other smaller species of cats including the domestic cat. Okay, it is a domestic cat which we kept in our houses, and wild cats. Okay, this is a wild cat which is found in forest. In size and appearance all belongs to the same cat family. Okay, as we are seeing that the tiger, lion and the leopard, these three are different in sizes. They are larger size animal and their appearance also different. And these first one domestic cat and this is wild cat. So they both are smaller species of cat and different in appearance, but they all belongs to same cat family. These all members of the cat family have same characters. Okay, which characters they all have I will show you. All have short rounded head. Okay, they all have, as are you seeing in the image, they all have short and rounded head and long face, whiskers. Okay, whiskers means जो the hair which grows near the mouth of a cat. Okay, cat, lion, they all belongs to a cat family. Okay, so जो इनकी ये बाल हेयर निकले हुए होते हैं जिनको मूछें भी हम कहते हैं, whiskers, and they have sharp teeth. And how was their teeth? Sharp teeth. Have sharp teeth. Okay, as are you seeing, their teeth are very sharp. Powerful claws. Okay, claws means the curved nails on the end of animal's foot. ठीक है, एनिमल के फुट पे जो उनके नेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लोज. Their long tails help them in jumping, climbing and balancing. Okay, as we are seeing, there is a long tail, so the tail helps them in jumping, jump करने में, climbing, पेड़ों पे चढ़ने में, and balancing, और खुद को बैलेंस करने में इनकी हेल्प करती हैं. टाइगर्स आर द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. जो टाइगर हैं आप इमेज में देख रहे हैं, ये कैट फैमिली का बिगेस्ट मेंबर हैं. देयर एवरेज लेंथ इज़ 9 to 10 feet. और इनकी एवरेज लेंथ कितनी होती है, कितनी लंबाई होती है इनकी, 9 to 10 feet. दे हैव अ येलोविश फर. और इनकी स्किन कैसी होती है, येलोविश फर, येलो येलो हेयर होते हैं विथ ब्लैक स्ट्रिप्स. और येलोविश फर के साथ में ब्लैक स्ट्रिप्स. ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है ना, ब्लैक स्ट्रिप्स इसकी बॉडी पे. सो वी हैव येलोविश फर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स. दे हंट बाय नाइट एंड लाई स्टिल ड्यूरिंग द डे. जो टाइगर हैं वो नाइट में हंट करता है और दिन में जो है चुपचाप बैठा रहता है. टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल. टाइगर जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है. One tiger can pull a dead buffalo which even a group of people won't be able to move. जो एक टाइगर होता है वो एक डेड बफेलो को अकेला पुल करके ले जा सकता है, जिसको कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप भी जिसे उठा के नहीं ले जा सकता, उसे अकेला एक टाइगर पुल करके ले जा सकता है. तो आप सोच सकते हैं कि टाइगर जो है वो कितना पावरफुल होता है.
इंडियन टाइगर इज़ नोन एज द रॉयल बंगाल टाइगर। जो इंडियन टाइगर हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। देयर वॉज अ टाइम व्हेन टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया। Until the 18th century we had thousands of tigers in our forest। एक टाइम था जब इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते थे और 18th सेंचुरी तक जो है इंडिया के फॉरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स थे। ओवर द ईयर्स लार्ज नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैव बीन किल्ड। लेकिन इन सालों में जो हैं बहुत सारे टाइगर्स जो हैं वो मारे गए। पीपल हंटेड दैम फॉर स्पोर्ट्स। पीपल स्पोर्ट्स के लिए उनकी हंटिंग करते हैं। ओके। कैप्ट देयर हेड्स एज ट्रॉफीज़। और उनके हेड को अपने घरों में ट्रॉफीज़ की तरह सजा देते हैं। There was also a myth about tiger skins having magical power of curing many disease, so people killed them to have their skins। टाइगर की स्किन के बारे में एक मिथ भी है। मिथ मीन्स समथिंग दैट मैनी पीपल बिलीव बट इज़ फॉल्स। ऐसी कोई बात जिसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं लेकिन वह फॉल्स होती है, झूठी होती है। ठीक है, तो लोगों में एक ऐसी गलत फहमी थी कि जो टाइगर की स्किन है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती हैं, इसलिए लोग जो हैं लोगों ने टाइगर का शिकार किया और उसकी स्किन को अपने घरों में रखा। Urbanization and deforestation also took their toll on tigers। Urbanization means more and more people living in towns and cities rather than in villages। बहुत सारे लोगों ने क्या किया? villages को छोड़ के सिटी में जाके रहने लगे। इसको हम कहते हैं urbanization। and deforestation means cutting down the and destroying all trees in an area। ओके, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, एक एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन कर दिया। एंड अर्बनाइजेशन जो हुआ, लोग विलेज को छोड़ के शहरों में जाके रहने लगे, इसकी वजह से भी जो है टाइगर्स की नंबर्स जो हैं वो बहुत कम हो गए। नो टाइगर्स हैव बीन लेफ्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अब एक भी टाइगर नहीं बचा। नो द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। ओके, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। आप लोग ये बात जानते हैं। इज़ दैट द वे टू ट्रीट आवर नेशनल एनिमल। और अगर हाँ हमारा नेशनल एनिमल है तो क्या ये कोई तरीका हुआ कि हम हमारे नेशनल एनिमल को इस तरीके से ट्रीट करते हैं? लोग उसकी हंटिंग करते हैं फॉर स्पोर्ट्स, फॉर देयर स्किन्स। ओके, जस्ट थिंक एंड डिसाइड व्हाट वी शुड डू। थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अब हम टाइगर्स को सेव कर पाएँ। ओके, आर लार्ज वाइल्ड कैट्स। लायन जो हैं वो क्या है? लार्ज वाइल्ड कैट, एक बहुत बड़ी वाइल्ड कैट हैं। दे आर टाउनी कलर्ड। ओके, इनका कलर कैसा होता है? टाउनी कलर्ड। टाउनी मीन्स ब्राउनविश येलो। ओके, ब्राउन जैसा येलो होता है। एन अडल्ट मेल वेट अबाउट 180 kg। और एक जो अडल्ट मैन होता है उसका वेट कितना होता है? 180 kg। एंड मेजर्स अबाउट 9 feet फ्रॉम नोज टू टेल। एंड नोज टू टेल लेंथ कितनी होती है? 9 feet। ओके, इंडियन लायन डिफर्स फ्रॉम द अफ्रीकन लायन इन दैट इट हैज़ नो मैन। जो इंडियन लायन होता है वो अफ्रीकन लायन से डिफरेंट होता है क्योंकि इंडियन लायन को जो है वो मैन नहीं होती। ओके, मैन मीन्स क्या होता है? MANE, मैन। मैन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ लायन। ओके, सो लायन की नेक पे जो है ये जो है लॉन्ग हेयर होते हैं अफ्रीकन लायन के, बट इंडियन लायन के लॉन्ग हेयर नहीं होते। सो अफ्रीकन लायन हैज़ अ मैन बट इंडियन लायन डजंट हैव मैन। ओके, but unlike the African lion, it has a tuft of hair on its elbow, at the end of its tail and on its belly। but जो इंडियन लायन होता है उसके on the elbow पे भी हेयर होते हैं, on its tail पे भी हेयर होते हैं, and at its belly, और इसका जो belly है, इसकी जो पेट है वहाँ पे भी जो है हेयर होते हैं। but the African lion doesn't have, not on its elbow, not on its body and not at the
टेल। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी हेयर नहीं होते हैं, बस अफ्रीकन लायन हैज़ अ मैन एंड इंडियन लायन डज नॉट हैव मैन। ओके, so I hope you have understand difference between Indian lion and African lion. Lions usually live in groups called prides. जो lion है वो ग्रुप में रहते हैं और lion के ग्रुप को क्या कहते हैं? Pride. A pride has one man, several females and all their cubs. और जो pride होती हैं उसमें क्या होता है? Only one man. एक ही male होता है, ओके, एक ही शेर होता है, एंड सेवरल फीमेल्स, ओके, और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, मीन्स बहुत सारी लॉयनेस होती हैं, एंड देयर कब्स, और उनके बच्चे होते हैं। ओके, लायंस ऑफन हंट एज अ टीम। जो लायन है वो कैसे हंट करते हैं? एज अ टीम, सारे लायन एक टीम बना के हंट करते हैं। द अदर स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स लव टू हंट अलोन। लेकिन लायन को छोड़ के जो अदर स्पीसीज़ हैं लाइक टाइगर, लेपर्ड एंड केट्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड केट्स, दे लव टू हंट अलोन। वे अकेले हंट करना पसंद करते हैं, लेकिन जो लायंस हैं वो टीम में हंटिंग करना पसंद करते हैं। Time lions were quite common throughout northern and central India, but now we have very few lions. They are found only in the Gir forest of Gujarat. एक टाइम था जब जो लायंस हैं वो इंडिया में, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे लायंस पाए जाते थे, लेकिन आज जो है हमारे पास में अब वेरी फ्यू लायंस, बहुत ही कम लायंस जो हैं वो बचे हैं। और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही अब लायन पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। लेपर्ड्स आर अ बिट स्मॉलर देन लायंस। लेपर्ड जो हैं वो लायन से थोड़े छोटे होते हैं। दे कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर। ये कहीं पे भी रह सकते हैं, पेड़ों पे भी रह सकते हैं, नीचे गुफा में भी रह सकते हैं, कहीं पे भी ये रह सकते हैं। दे कैन फीड ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। और ये कुछ भी खा सकते हैं। ओके, दे कैन हंट एंड किल एनी टाइप ऑफ एनिमल और बर्ड्स। वे किसी भी टाइप के एनिमल और बर्ड्स की भी हंटिंग कर सकते हैं। दोज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ विलेजेस प्रे ऑन डॉग्स। और ये जो है कभी कभी विलेजेस के आसपास के एरिया में भी रहते हैं और वहाँ पे जो हैं ये जो डॉगीज़ होते हैं, विलेजेस डॉगीज़, उनको अपना शिकार बनाते हैं। समटाइम्स दे टर्न इनटू कैटल लिफ्टर्स। कभी कभी ये कैटल लिफ्टर्स हो जाते हैं, जानवरों को खाते हैं। सम लेपर्ड बिकम मैन ईटर्स ऑल्सो। और कुछ लेपर्ड्स जो होते हैं वो कभी कभी मैन ईटर्स भी बन जाते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स, लोगों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। बर्ड्स ऑफन हंट फ्रॉम ट्रीज। लेपर्ड्स जो हैं वो अक्सर जो हैं ट्रीज से ही हंट करते हैं। लाइंग इन वेट ऑन अ ब्रांच। एक ब्रांच पे बैठे रहते हैं और वेट करते हैं। If they can't eat all their catch at once, they haul the carcass high up into a tree. और ये जो हैं क्या करते हैं, ब्रांच पे बैठे बैठे अपने शिकार को देखते रहते हैं और जैसे ही कोई एनिमल आता है ये उसका शिकार कर लेते हैं। कभी कभी जब ये अपने शिकार को पूरा नहीं खा पाते हैं तो उसको खींच के पेड़ की ब्रांच पे ले जाके रख देते हैं बाद में खाने के लिए। दे डू दिस टू स्टॉप अदर एनिमल्स फ्रॉम स्टीलिंग इट। और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई दूसरा एनिमल इनके शिकार को चुरा ना ले। ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, जो कैट्स की सारी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, ये तीनों स्पीसीज़ जो हैं ये डेंजर में हैं ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स अ सिचुएशन इन विच अ प्लांट और एनिमल स्टॉप एग्जिस्टिंग। मीन्स आज जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं, डेंजर में हैं, ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा क्यों है? लार्ज स्केल ऑफ पॉचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेन कोज। इसके लार्ज जो रीज़न हैं वो क्या हैं? And its reason is poaching means illegal hunting and deforestation. Okay, cutting of trees are the main causes. ये main causes हैं जिनकी वजह से जो हैं आज ये कैट स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं।
गवर्नमेंट हैज़ नाउ बैंड द हंटिंग ऑफ एनी बर्ड और एनिमल। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो है किसी भी बर्ड या एनिमल की हंटिंग पर बैंड लगा देना चाहिए। इट हैज़ क्रिएटेड मोर देन 400 नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आर फ्लोरा एंड फोना। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने करीब मोर देन 400 नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ बनाई हैं। ठीक है, व्हाट इज़ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़? एरियाज़ वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू ब्रीड। ओके, जहाँ एनिमल्स को और बर्ड्स को रखा जाता है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है और उनकी जो है उनके नंबर्स बढ़ाने की कोशिश की जाती हैं। और ऐसे मोर देन 400 नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हैं टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, देयर आर ओवर 80 नेशनल पार्क इन इंडिया। आप जानते हैं इंडिया में 80 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। द टॉप 5 ऑफ दिस आर कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। इनमें से जो टॉप 5 नेशनल पार्क है उनमें से हैं कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। एज आर यू सीइंग इन द इमेज, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ टाइगर कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सेकेंड वन इज़ कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ओके, ये हमारे मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, और रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। ओके, एंड फोर्थ वन इज़ कांजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ठीक है, और असम में जो है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क हैं जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है एंड इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, ये जो है अब एक विश्व की विरासत बन गई है। यहाँ पे लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। द फिफ्थ इज़ गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। ओके, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं आज टाइगर्स एंड लायंस के लिए जो हैं, इन कैट स्पीसीज़ के लिए जो हैं बनाए गए हैं ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनके नंबर्स को बढ़ाया जा सके, जिससे कि ये जो हैं ख़त्म होने की कगार पे आके जहाँ पे खड़े हैं उससे बचे रहें। हैव यू एवर विजिट एनी ऑफ दिस? क्या आपने इन सारे नेशनल पार्क में से कभी किसी नेशनल पार्क में आप गए हैं? अगर आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको लिख के भेजना है। ओके।